picture 2020, CSR became one of the major tools which brought back India from a global crisis. हाउस उत्तर का शुभारंभ किया गया जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिटर्न आपके का एक ऐसा समागम बनाया गया है कि CSR अब केवल एकीकृत ढांचे के रूप में विकसित नहीं किया गया, इसके माध्यम से संस्थापक और ये पूरा इकोसिस्टम स्वयं को भारत की पहले कॉर्पोरेट सोशल रिटर्न RTA के रूप में स्थापित करता है। जमीनी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है ताकि रणनीति को मापदंड और ठोस परिणामों को बदला जा सके। CSR पोर्टफोलियो में गवर्नेंस और स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। डिजाइन फ्रेमवर्क और इम्पैक्ट की थीम के साथ इसे एक बहुत बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए जवाबदेही का संतुलन बनाया गया है। CSR हाउस ऑफ दिल्ली से Karnataka, Tamil Nadu, Delhi. When we talk about the evolution of even regional fundings, until 2 years ago we always stopped at 0.3 कि top regions ये हैं. But when we look at tier 2 cities, that's also seen a lot of improvement. A 55% increase in terms of tier 2 city investments is high. Another insight that came into the picture, and I'm not sure if Soumitra sir has already arrived. Hello sir, thank you for a brilliant report that Sakha has published. However, सामग्री क्योंकि बोल रही है तो बोल देते हैं हाँ, because it is established. CSR isn't emerging anymore. It is established. What happens in 2026? Safe to say, firstly, congratulations to this entire room because I know there is government representation, there is corporate representation, there is NGO representation, there is academia, and this is the mini sector sitting in this room. Because at the end of the day, corporate social responsibility is about corporate social returns. You see us reusing this word over and over and over again. This is what we mean. And returns don't necessarily just mean financial. They mean systemic. Community getting agency, businesses gaining community trust, resilience. And the governance system just getting stronger. The impact isn't charity. We've seen a 12-year timeline. Impact center. It's the place, very place, where we actually find business conscience and community intelligence together. It's the place where we create, architect comprehensive strategies, stories, solutions so that your social impact investments convert into measurable returns for everyone that we're talking about. And House of Tar is not basically here to solve problem of the heart. India has never lacked intent as such. What it's really lacked are systems. Systems that sees the whole world, stitches it together into one coherent story. That's what we're talking about here. Because we need a system that basically talks about both, the language of both. पैरिस में है, वो हमेशा कहते रहते हैं कि CSR घर का छोटा बेटा है जिसको इज्जत नहीं मिलती. गए वो दिन, गए वो यादें, गए वो यादें. Now CSR is going to be a business asset. That's what exactly the next decade of CSR is going to be about. We told you at the beginning that the flow would not seem the usual. We said thank you at the beginning because we wanted to say the new chapter is welcome to the new era of corporate social returns, and we are very happy to have the formal launch of Calculate. That stands for reason. Because at the end of the day, corporate social responsibility. जब गवर्नमेंट कॉर्पोरेट कंपनी अपने CSR फंड्स को जो इम्प्लीमेंट करती हैं, जो उसके साथ जो NGOs जुड़ती हैं, फाउंडेशन जुड़ते हैं, बहुत से जुड़ते हैं, लेकिन आजकल कंपनियों ने अपने ही फाउंडेशन, अपने CSR फंड्स, अपना ही मोबिलाइजेशन अपने ही वो उसमें करके अपना रिटर्न भी अपना वो लेती हैं, कंपनी इम्पैक्ट करती हैं उसमें। तो तर्क उसको किस तरीके देखता है अपने लेवल पर? I think so. It's a very, very, very important step in the right direction. When company creates a CSR foundation, it basically says that we are taking responsibility today to execute these programs as of how we want it, जिस हिसाब से जिस कम्युनिटी को हमें इम्पैक्ट करना है उसे हम करना चाहते हैं। कंपनीज का यूजुअली काम अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट करने का होता है। कंपनीज का काम
सर्विसेज प्रोवाइड करने का होता है, बट व्हेन कंपनी सेज वी वांट टू गो एक्स्ट्रा स्टेप और हम आगे जाके फाउंडेशन क्रिएट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम्स खुद से, इट्स अ वेरी इवॉल्व्ड अप्रोच. सो आई थिंक it's a very kudos job for a lot of organizations. I know Arvind has a great foundation that they implement. Honda actually implements greatly through the ONGC foundation. has a foundation. ONGC has a foundation. I think all of them are doing wonderful jobs. So I think इस सेक्टर से जैसे बोला कि इस सेक्टर में इतना कुछ है करने के लिए कि I think everybody will Has a shortfall space. and has a space to do it. लेकिन जब बजट की बात आती है तो फाउंडेशन जो है बजट में वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता. 2.5% जो है इम्प्लीमेंट वो नहीं हो पाता. उसकी रिटर्न्स होती है क्योंकि इम्पैक्ट होता है. अगर हम रीजनल एरिया में जाएंगे या नॉर्थ ईस्ट में हम जाते हैं कंपनी में काम करने CSR फंड्स के लिए, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं दे पाती है CSR. सर शायद आज का ये रूम आपको एक बहुत एनलाइटन करेगा क्योंकि ये चाहे वो इम्पैक्ट जी जी ये राइट है कि वो इम्पैक्ट नहीं दे पाते हैं, सिर्फ वो एक प्रोफाइल रह जाता है. जी जी. Sir, I think यहाँ पे थोड़ा experience is going to speak in this room. I can see the expressions changing from my perspective. कि नॉर्थ सर अपना अपना अनुभव है सर. नॉर्थ ईस्ट में राइट जी सर. ये इम्पैक्ट है. राइट अनुभव, हमारा भी अनुभव बिल्कुल सही बात है सर. अनुभव इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड. सॉरी जी सर. मनोविराज सिंह तर्क. क्या पता है CSR फंडिंग की आप जो बात कर रहे हैं सर, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और जहाँ तक बात करें गवर्नमेंट एक्सपो की, उस पर आप कैसे देखते हैं? नहीं, आई थिंक तर्क कैसे CSR इम्प्लीमेंट कर रहा है वो वैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है जैसा एक्चुअली में होना चाहिए था. तर्क आज की डेट में मल्टीपल कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट और कम्युनिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है जिससे हर एक का फायदा हो. क्योंकि जब भी कोई भी कहीं इन्वेस्टमेंट करता है वो ये देखता है कि कम्युनिटी में कैसे उसका बेनिफिट पहुंचे, लास्ट माइल इम्पैक्ट पहुंचे और वो सस्टेनेबल रहे आगे सालों तक. क्योंकि हम CSR करके फिर गायब नहीं होना चाहते, हम वहाँ रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उन बच्चों को बढ़ते हुए, उन खेत खलियानों को आगे बढ़ते हुए, उन घरों को बिल्ड होते हुए. तो हाँ, CSR की जर्नी आपके पीछे है और ये जर्नी आपकी काफी आगे जाएगी. CSR सिस्टम डिजाइन जो है, CSR रजिस्ट्रेशन भी, ये कंपनी CSR में गवर्नमेंट काफी इंटरेस्ट ले रही है और उसकी वजह से नए नए रेगुलेशन हैं, ये चीजें आती रहती हैं. तो बस वो चीज है, ये जर्नी दिखाई है कि CSR एज अ सेक्टर इवॉल्व कर रहा है. गवर्नमेंट अभी CSR फंड में एक प्रोजेक्ट निकाला है कि जो भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, हाँ. कॉर्पोरेट कंपनियां उनको अपने यहाँ मैंडेटरी ये करेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो फंड रिलाइज होगा. जी जी. तो क्या उस पर भी आप काम करेंगे? कुछ उसमें अभी हमने शुरू नहीं किया है, बट हाँ आगे जाते हुए देखेंगे. स्टार्टअप हाँ. के लिए जो काम करते जी, हैं जी. तो अभी आपका आने वाला भविष्य किस तरीके देखते हैं? आने वाला भविष्य, आने वाला में आप क्या मांगते हैं? नहीं, बजट में आई थिंक CSR पार्लियामेंट की तरफ से भी CSR लॉ में चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं. तो हम लोग बिल का वेट कर रहे हैं कि बिल में क्या आता है, उसके बेसिस पे देखेंगे क्या होगा. मतलब होना क्या चाहिए, मतलब पिछले और अब के क्या होना चाहिए? नहीं, आई थिंक एक चीज होनी चाहिए, वो ये है कि CSR सेक्टर इमर्ज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. तो थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद.